Good morning class. Again, welcome in my YouTube class. Student, again we will start a short revision of chapter 1 and topic is integers. Okay. What is the integer? All the complete number from positive infinite to negative infinite is known as the integer. It means we can also represent integer on a number line. For example, here is a number line. Suppose it is just 0. From the right side of the 0 we take all positive number like the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as on dot 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 कहाँ तक पॉजिटिव इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट एवरी वैल्यू इज पॉजिटिव एंड फ्रॉम द 0 to left side every term is a negative -1 -2 -3 -4 -5 -6 as on dot 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 minus infinite everything is a negative. Okay, so we consider all the number either may be positive or may be negative, including 0 is known as the integer. Okay, so integer क्या, it should be complete number. Okay, we cannot say it is integer 3.2 because it is a decimal value, but integer is a complete value like the 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, these are the integer, and we have already discussed there are the different properties of the integer. Like the properties of the integer is there are the different properties. It is clear? Properties of the integer. Okay, so properties, first property, properties of प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम सबसे पहले आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव, फोर्थ वन इज associative distributive, property, fifth one is the identity, and sixth one is inverse. Okay, first one is a closure property. So what's a closure property? If we add any two number, if its result is a integer, if we add any two number and its result is also integer, then we can say it hold the closure property. For example, 2 plus 3, 2 is a integer and 3 is also integer. When we add, we get its result is equal to 5. Okay, and 5 is also integer. It is clear? Suppose -2 plus 3, -2 is also integer, negative integer, and plus 3 is a positive integer. When we add plus minus we always subtract, तो 3 में से 2 जाएगा 1. Which one is greater? 3. What is the sign? Positive. By default, if we not mention any sign, it means here positive sign is hidden. तो यहाँ पे आपका जो आ गया देख रहे हैं, ये भी दो इंटीजरों को हमने ऐड किया, उसका रिजल्ट अगर इंटीजर आ गया तो वी कैन से इट होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी. इट इज़ क्लियर? सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ वी ऐड टू इंटीजर and we interchange their place value, then there is no change in its result, is known as the commutative property.
we can say there is two types we can use, there are two properties in a commutative property. First one is the addition case and second is the multiplication case. ओके, तो आपके देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले क्या है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल सपोज a प्लस b इक्वल टू b प्लस a. इफ द सम ऑफ टू इंटीजर, इफ वी ऐड a प्लस b or if we interchange b plus a, but the result of these case should be same, so we can say it holds the commutative property in the case of the addition. इसको बोलते हैं addition, right? If we multiply two integer, if we interchange their place value, if their result is same, then we can say it is also commutative property in the case of the multiplication. ओके, ये एडिशन केस में अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है तो ये आपका एडिशन केस में भी आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा. इफ a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, देन इट इज आल्सो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल इफ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3. ठीक, पहले चेक करते a प्लस बी इक्वल टू, चेक करते a की जगह क्या है 2 प्लस -3, राइट. तो कुछ प्रॉपर्टी आपको बताना चाहिए. क्या ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक फार्मूले हैं. प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा. ये आपको कुछ रूल्स हैं आपको याद करने होंगे. जैसे प्लस का किसी चीज़ से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट माइनस आएगा, और माइनस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका माइनस आएगा. इट मीन्स इफ़ टू डिजिट आर द सेम साइन, इफ बोथ आर द पॉजिटिव वी गेट पॉजिटिव, इफ बोथ आर द नेगेटिव वी अगेन गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट. It is clear? If one of them is a negative, then we always get a negative sign in the case of the multiplication. Okay? अभी चेक करते हैं +2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 -3, राइट. 2 -3, 2 में से 3 जाएगा, we will get 1 आ गया. अब देखते हैं which one is the greater, 2 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है. यहाँ पे देखते हैं 3 बड़ा है, तो 3 के साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी इसका साइन नेगेटिव आ गया. अभी हम इसको लिखते हैं b प्लस ए. द वैल्यू ऑफ b इज -3 प्लस a इज 2, राइट. प्लस माइनस जहाँ आएगा तो पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा 1, और विच वन इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर, एंड व्हाट इज साइन, नेगेटिव, सो वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव साइन. तो a प्लस बी की वैल्यू भी -1 आया और b प्लस ए की वैल्यू भी -1 आएगा. इसका मतलब इफ़ वी इंटरचेंज द प्लेस वैल्यू बट देयर रिजल्ट इज द सेम, सो वी कैन से इट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ द एडिशन. इट इज़ क्लियर. नाउ वी विल चेक इन द केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. ओके, सपोज a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए. अगर ये होता है तो हम कह सकते हैं कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करता है. द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -3. सेम हियर, -3 इन 2, राइट. 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस. हियर द रिजल्ट ऑफ दिस वैल्यू आर सेम, so we can say it hold the commutative property in the case of the multiplication. It is clear. Same we will also check associative property. Okay, associative property is also like a commutative property. If a plus b plus c की वैल्यू a plus b plus c के वैल्यू के इक्वल आ गया. अगर a b इस, अगर we add 3 टर्म like this, if we or like this,
both result will be same. First we solve this bracket value, after that we add. First we solve this bracket value, after that we add. Okay, here the value of A is 2, B is -3 and C is -1. Okay, let us start. A 2 plus B is -3 plus C is -1, right? Again A की वैल्यू B प्लस B की वैल्यू क्या है -3 प्लस C की वैल्यू क्या है -1. इट इज क्लियर? प्लस माइनस माइनस 2 -3. ओके, प्लस माइनस माइनस, ओके, 2 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस. फर्स्ट वी सॉल्व दिस वैल्यू. 2 में से 3 जाएगा 1. ये वैल्यू बड़ा है, इसके साथ साइन नेगेटिव, वी यूज नेगेटिव साइन -1. सेम 2 प्लस माइनस माइनस. इफ बोथ आर द नेगेटिव सो वी ऐड माइनस. अगर मल्टीप्लिकेशन का बीच में होता तो माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, मतलब इनको दोनों को सेपरेट करना है. तो -3 में से -1 जाएगा, -4 बचेगा. ओके, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट क्या होगा -2 हो जाएगा. और ये आपका 2 प्लस माइनस माइनस. अब 4 में से 2 जाएगा 2. विच वन इज ग्रेटर? -4. सो वी यूज माइनस. इसका मतलब LHS द वैल्यू ऑफ LHS इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ RHS इज -2. इट मीन्स वी कैन से it also hold the associative property in the case of the addition. Similarly we can also check in the case of the multiplication. Okay, let us clear. First we should check if A into B into C is equal to A into B into C. Let us start. The value of A is 2, B की वैल्यू -3, C की वैल्यू -1. द वैल्यू ऑफ A 2, B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू -1. ओके, लेट अस स्टार्ट. पहले इसको माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3. ओके, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 एंड ये -1. 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, माइनस माइनस प्लस. ओके, प्लस आप लिखे ना लिखे नो नीड. आप प्लस लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इसका मतलब देखते हैं ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. इट इज़ क्लियर? सिमिलरली वी विल आल्सो चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपका क्या है? सेम. इट इज़ आल्सो सो सिंपल. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इफ़ यू मल्टीप्लाई A इंटू बी प्लस सी, तो इसकी जो वैल्यू आएगा इस A को इफ़ यू मल्टीप्लाई A in within a bracket B plus C, then we should multiply A with every and each term of the bracket. तो A into B plus A into C. अगर यहाँ प्लस होगा प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा. ठीक है, प्लस के लिए प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे. फॉर एग्जांपल A की वैल्यू 2 है, B प्लस C. B की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ और C की वैल्यू 4 लेता हूँ, चलिए 1 लेता हूँ ना. ओके, चेक करते हैं हम. इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1. तो देखते हैं 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2. वी यूज़ अ BODMAS रूल. फर्स्ट वी यूज़ अ ब्रैकेट वैल्यू, हियर नो ब्रैकेट. वी फर्स्ट सेकेंड वी विल डिवाइड, नो डिवाइड. then we should multiply. Here the first we should multiply, then we add. तो 6 plus 2 is 8. और इसी को देख लेते हैं 2. पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 4 2 4 जा 8.
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस टर्म को हम इस तरह से एक्सपेंड फॉर्म में हम ले सकते हैं, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, द वैल्यू ऑफ ए बी सी मे बी द डिफरेंट वैल्यू, इट मे बी द पॉजिटिव और इट मे बी द नेगेटिव। ओके, तो नेक्स्ट इज द व्हाट इज द आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी। Identity in the case of addition के लिए क्या है, 0 is identity। ओके, आइडेंटिटी क्या था, किसी भी नंबर में अगर हम कोई नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 प्लस a प्लस 0 इक्वल टू a, राइट। सपोज डेट अगर 0 है, a की वैल्यू -1 है, या फिर -1 है प्लस 0, चेक करते हैं प्लस माइनस माइनस और 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वो वैल्यू -1 आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं -1 प्लस 0 क्या आएगा, -1। ठीक है, तो एडिशन के केस का आइडेंटिटी क्या होता है, इन द केस ऑफ द एडिशन द आइडेंटिटी इज 0। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ठीक, ओके, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है। 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन उसकी आइडेंटिटी क्या, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव। ओके, 1 को क्या बोलते हैं, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सपोज अगर हम 1 को a से मल्टीप्लाई करें और या फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी ऑलवेज गेट a, राइट। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर, चलो -2 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 का, या फिर a की वैल्यू अगर हम -5 लेते हैं, चेक करते हैं 1 इंटू माइनस का 5 या फिर माइनस का 5 इंटू 1, तो 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस, दिस वन 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस, द वैल्यू हियर -5 इज a। -5 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अगर उसका रिजल्ट हमको सेम वैल्यू मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली आपका इन्वर्स के लिए क्या है, ठीक है, इन्वर्स के लिए क्या है, अगर हम दो नंबरों को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इन्वर्स ठीक है, एडिशन केस में क्या होगा, ठीक है, इफ वी ऐड एनी टू नंबर इफ इट्स रिजल्ट इज 0, इफ वी ऐड एनी टू नंबर इफ इट्स रिजल्ट इज 0 मीन्स इट्स आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी है, तो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। जैसे प्लस ए, ठीक है, प्लस ए की में क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट 0 आए, किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट जो आएगा उसकी आइडेंटिटी आ जाए एडिशन की। हमको नहीं पता, हम यहाँ पे x मान लेते हैं, राइट, x है प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो x इक्वल टू क्या होगा -a, राइट। तो एडिशन के केस में कोई भी नंबर हो, इंटीजर है, उसका अगर साइन चेंज कर ले तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। फॉर एग्जांपल -10 में क्या ऐड करें कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए, राइट। तो अगर मैं इसका साइन चेंज करूँ, जैसे a है तो उसका इन्वर्स क्या होगा -a, अगर मैं यहाँ पे माइनस था तो माइनस का साइन चेंज कर लेता हूँ, -10 है -10, तो ये क्या जाएगा प्लस, अगर मैं प्लस 10 - 10 करेंगे ना 0 आएगा। उसी तरह -5 के आइडेंटिटी क्या होगा +5,
ठीक है, माने वी कैन से 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ -5 या -5 इज द आइडेंटिटी ऑफ द +5 इन द केस ऑफ द एडिशन। -2 बाई -21 का या फिर +21 का आइडेंटिटी क्या होगा, -21 बाई, बिकॉज व्हेन वी ऐड दीज नंबर वी विल गेट 0। तो एडिशन केस में बस साइन चेंज कर लीजिए तो वो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, सॉरी उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। एडिशन में बस क्या करेंगे, जो भी डिजिट दिया है उसका साइन चेंज कर लीजिए। अगर नेगेटिव दिया है तो 20, अगर नेगेटिव में है तो हम उसका इन्वर्स पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में है तो उसका इन्वर्स नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होगा कि सपोज ए है, ए बाई बी में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको उसका रिजल्ट, उसकी आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। हमको यहाँ पे नंबर नहीं पता, मान लेते हैं एक्स, यार 1। इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। आफ्टर ट्रांसपोज इट इज़ द इन द केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर इट विल बी डिवीजन। इसका मतलब ए बाई बी में अगर मैं बी बाई ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, 1 आएगा। तो किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं विथ सेम साइन। -5/3 का इन्वर्स क्या होगा, सेम साइन, बस उसका जो भी वैल्यू दिया है उसके हम फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो वो उसका इन्वर्स कहलाता है। जैसे 3 से 3 काटेंगे तो -1 टाइम आएगा, और 5 से 5 काटेंगे तो -1 टाइम्स आएगा। -1 इंटू -1 इज नोन एज द +1। ओके, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर मेन लेक्चर, only we use our short revision for the properties of the integer. Okay, so that's all for today, and you will practice on the behalf of this property, and you will solve the exercise. Okay, thanks to everyone.